Hi guys, this is my part 2 video of journal entry in financial accounting, and this video basically related to rules of debit and credit in journal entry. What are the rules we just have to follow in doing a journal entry? So in this particular video, I will provide you all the topics related to the rules of debit and credit. What are the classification of accounts? One is related to traditional approach accounts and second one is modern approach. So I am just giving two full insight view of traditional approach and modern approach in this video. So please watch full video, and if you really like this, then don't forget to share this with your friends and subscribe the channel soon. So starting with my topic, rules of debit and credit in a journal entry. So basically when we do journal entries in a financial accounting section, और अगर मैं क्लास 11th की बात करूँ तो जब हम इसको करते हैं रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट को, तो वहाँ पे हमें एक रूल को फॉलो किया जाता है, गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग, दैट्स कॉल्ड गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग. सो बुक सेक्शन की अगर हम बात करें तो पर्टिकुलर बुक में आपको प्रोवाइड होता है गोल्डन रूल्स ऑफ बुक जर्नल एंट्री. सो गोल्डन रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट से रिलेटेड हमारे पास में 3 टाइप के रूल्स हम फॉलो करते हैं. वन इज़ पर्सनल अकाउंट से रिलेटेड, सेकेंड वन इज़ नॉमिनल अकाउंट एंड थर्ड वन इज़ आपके रिलेटेड टू रियल अकाउंट्स. लेकिन अगर हम टेक्निकली बात करें तो टेक्निकली यहाँ पे आपके 2 टाइप की अप्रोच फॉलो की जाती है क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट से रिलेटेड. सो क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट इज बेस्ड or we can say that classification of accounts but is a base for rules of debit and credit of journal entries. So look at the first point, that is related to traditional approach of classification of accounts. So traditional approach of classification of accounts basically divided into 2 main parts. One is personal account and the second one is nominal account and real account. So 3 types of accounts are classified under the section of traditional approach of accounting. So traditional approach of account classification based on 3 main parts. One is personal account, second one is nominal, and third one is real accounts. So we just have to follow the different rules of debit and credit according to personal account and according to nominal account and according to real accounts. So first of all, we have to do a clarity about what is personal account and what is real account and what is nominal account. So first look at the personal accounts. So personal account basically related to a person or a representative agency or a we can say that artificial person. So artificial person, there are 3 main types of account classification under the personal account head. One is natural person. Natural person means if I talk about a particular name, like for example Ram, Sita, Sham, etc. If a particular name is given in a business transaction entry, then it is called natural personal account. So natural person account related to when a name is given, name of a human being is given, then it's called personal account. That is natural personal account. A natural person account. Then second one is artificial person. Artificial person means like companies, clubs, societies, etc. If I am talking about company section, society section and club membership, etc., then these all called artificial person account under the head of personal account. So personal account divided into 3 main parts: natural person and artificial person and representative person. Now look at the representative person. Who is called representative person? When an entry related to an human being, then it's called रिप्रेजेंटेटिव पर्सन अकाउंट. सो रिप्रेजेंटेटिव पर्सन मतलब जो आपके पर्सन ह्यूमन बीइंग को जो रिप्रेजेंट करे किसी ना किसी तौर पे. लाइक यहाँ पे अगर हम फॉर एग्जांपल बात करें, फॉर एग्जांपल सैलरी आउटस्टैंडिंग, तो सैलरी किसकी आउटस्टैंडिंग होगी? पर्टिकुलर वर्कर की. एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस जो कि हमारे एक्सपेंसेस हम प्रीपेड कर चुके हैं. एंड रेंट, वेजेज, एट्सेट्रा. तो रेंट, वेजेज, प्रीपेड एक्सपेंसेज, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज, ये सारे क्या होती हैं? आपकी
रिप्रेजेंटेटिव पर्सन से रिलेटेड होती हैं। तो 3 मेन कैटेगरीज में हम डिवाइड कर रहे हैं किसको, पर्सनल अकाउंट को, आपका नेचुरल पर्सन, देन उसके बाद में हमारा आर्टिफिशियल पर्सन आता है, देन उसके बाद में रिप्रेजेंटेटिव पर्सन आता है। तो ये आपको पर्सनल अकाउंट से रिलेटेड क्लासिफिकेशन क्लियर हो जाना चाहिए माइंड में। अब हम बात करेंगे रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट कैसे फॉलो किया जाता है अंडर द हेड ऑफ पर्सनल अकाउंट। सो व्हाट इज द रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट? So here debit the receiver and credit the giver. Debit the receiver and credit the giver means जो आप जिससे आप लेते हो तो वो क्या होगा, डेबिट होगा, एंड क्रेडिट द गिवर जो आपको देगा वो क्या होगा, क्रेडिट होगा। सो अगर मान लीजिए मैं किसी को कोई चीज़ उधार देती हूँ तो मैं क्या हो गई, गिवर हो गई, तो मुझे क्रेडिट सेक्शन में एंट्री होगी मेरे नाम से, एंड जिसको मैं दे रही हूँ वो क्या हो गया, रिसीवर हो गया, तो उसकी एंट्री किस में होगी, डेबिट सेक्शन में। सो डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। नाउ फॉर नॉमिनल अकाउंट सेक्शन, नॉमिनल अकाउंट्स की अगर हम बात करें तो नॉमिनल अकाउंट्स में आपका फॉर एग्जांपल एक्सपेंसेस, लॉसेस, गेन एंड इनकम। सो फॉर रिलेटेड टू एक्सपेंसेस, लॉसेस, गेन्स एंड इनकम्स, इट्स कॉल्ड नॉमिनल अकाउंट सेक्शन। सो नॉमिनल अकाउंट की बात करते हैं तो नॉमिनल अकाउंट में कैसा रूल फॉलो किया जाता है? इन नॉमिनल अकाउंट रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट इज डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड क्रेडिट ऑल द इनकम। जितने भी एक्सपेंसेज हैं उनको डेबिट सेक्शन में पुटअप कीजिए, एंड जितने भी आपकी इनकम होती है उन्हें हम कहाँ पुटअप करेंगे, क्रेडिट साइड में। सो फॉर एग्जाम्पल सैलरी पेड वर्थ ₹5,000, सैलरी पेड वर्थ ₹5,000, देन व्हाट इज द एंट्री फॉर दैट? सैलरी क्या की गई, पे की गई, तो दैट मीन्स ये आपका एक्सपेंसेस हुआ, तो इसे मैं क्या करूँगी, डेबिट करूँगी। सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, किस में पे गई है, कैश में, तो कैश अकाउंट को क्या करूँगी मैं, क्रेडिट करूँगी। तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ये आपकी जर्नल एंट्री हो जाएगी किससे रिलेटेड, आपके नॉमिनल अकाउंट्स के रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट के अकॉर्डिंग, जहाँ पे हम एक्सपेंसेस को डेबिट सेक्शन में पुटअप करते हैं और आपकी इनकम को हम क्रेडिट सेक्शन में पुटअप करते हैं। तो सेकेंड रूल मस्ट बी क्लियर इन योर माइंड। नाउ look at the section of real accounts. What is the real account? Real account basically related to assets, liabilities. So whatever the rules we follow in terms of assets and liability is called the rules of real account. So real account से related मैं अगर बात कर रहे हैं तो हम means हमें यहाँ पे rules को follow करना होगा जब assets की और liabilities दोनों की हम बात करें। तो assets में हमें यहाँ पे कौन सा rule आपका follow होगा? So what is the rule of debit and credit? So debit what comes in and credit what goes out. Debit what comes in and credit what goes out. तो यहाँ पे मीन्स कि जो आपके पास में आता है वो आपकी क्या होगी, डेबिट एंट्री होगी। अगर कुछ माल जाता है तो वहाँ पे आपकी एंट्री क्या होगी, क्रेडिट होगी। फॉर एग्जाम्पल हियर आई टेक एन एग्जाम्पल लाइक आई बॉट बिल्डिंग वर्थ ₹40 लाख। मैंने क्या खरीदी, यहाँ पे बिल्डिंग खरीदी थी, कितने में, 40 लाख में। तो अब इसकी एंट्री क्या होगी, मेरे पास आई क्या, असेट्स कौन सी आई मेरे पास, बिल्डिंग। तो बिल्डिंग अकाउंट को मैं क्या करूँगी, डेबिट करूँगी। सो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू। अब लेकिन मैंने क्या किस में करी है, कैश कितना गया मेरे पास से, 40 लाख का गया, तो मीन्स कैश अकाउंट को क्या करूँगी मैं, क्रेडिट करूँगी। तो बिल्डिंग अकाउंट टू कैश अकाउंट इट्स कॉल्ड द एंट्री ऑफ रियल अकाउंट्स फॉर following the rules of debit and credit in a journal entry section. So the real account must be clear in your mind. हमें डेबिट को उन आइटम्स को दिखाना है जब हमारे पास में इंक्रीमेंट होता है या कुछ आती हैं चीज़ें, और हमें जब अगर कमी होती है, डिक्रीमेंट का सेक्शन अगर आ जाता है तो उसे क्रेडिट कर दीजिए। Modern approach of accounts. This is all about the traditional approach of classification of account. Now we just look at the next section, that is modern approach of classification of accounts. So modern approach of classification of accounts, according to this first section is asset section. So assets related to your for example plant, machinery, building, furniture, fixtures, marketable securities, etc. So these are all are your asset section. And what rule you have to follow? So here the rule of debit and credit is debit when there is an increase in assets and credit when there is a decrease in assets. If there is an increase in my business related to asset section, then I have to do this entry in debit side. If there is a decrease in asset section in my business, then I have to
put up this in credit side entry. So the rule is very simple about the asset side. So अगर आपकी assets increase हो रही हैं तो आप उसे डेबिट कीजिए, अगर आपकी asset decrease हो रही हैं तो आप उसे क्रेडिट कीजिए. Very simple. So this is the basic simple formula of following the rules regarding the assets of in a business. For example, if I sold a furniture worth rupees 10,000, अगर मैंने फर्नीचर सोल्ड कर दिया कितने का, 10,000 का, तो यहाँ पे देखिए देखने वाली बात ये है कि मैंने सोल्ड किया है फर्नीचर, तो मेरी असेट्स कम हो गई हैं. तो कम हो गई है दैट मीन्स मुझे फर्नीचर को क्रेडिट साइड में एंट्री करनी होगी. और मेरे पास से गया क्या, आ गया क्या है, मेरे पास सोल्ड किया तो कैश आ गया है. तो एंट्री वेरी सिंपल है आपके पास में, कैश अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट. 10,000 की एंट्री कर देनी है आपको दोनों सेक्शन में, इन फ्रंट ऑफ डेबिट एंड इन फ्रंट ऑफ क्रेडिट. तो ये आपकी बेसिकली रिलेटेड टू रूल्स हो गया. जब हमें एसेट्स से रिलेटेड रूल की अगर हम बात कर रहे हैं तो इंक्रीज अगर होती है आपके एसेट्स तो डेबिट कीजिए, और डिक्रीज होती है तो उसे क्रेडिट कीजिए. Now the next section, liability section. So liabilities से related, for example, creditors, bank loan, bills payable, etc. So these are all the examples of liabilities. So liabilities के लिए कैसे rule follow करेंगे? So when I talk about the liability section, according to modern approach of classification of account, then rule of debit and credit is debit when there is an decrease in liability in my business, and credit when there is an increase in liability in my business. If I'm talking about a decrement in liability, then I have to debit this. If I'm talking about an increment in liabilities, then I have to credit this. For example, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ एग्जाम्पल की कि लोन टेकन फ्रॉम अ बैंक, लोन टेकन फ्रॉम अ बैंक, तो मैंने क्या लिया है यहाँ पे, लोन लिया है. कहाँ से लिया है, बैंक से. तो लोन मीन्स मेरी क्या हो गई है, लाइबिलिटीज़ इंक्रीज़ हो गई हैं. तो लाइबिलिटीज़ इंक्रीज़ हुई है दैट मीन्स मुझे यहाँ पे पुटअप करना होगा इसे क्रेडिट साइड में. कहाँ पुटअप करना होगा, क्रेडिट में. सो यहाँ पे आपकी जो एंट्री आप कर दोगे, तो यहाँ जो एंट्री आप करोगे, लोन आप लेते हो फ्रॉम अ बैंक, दैट मीन्स तो बैंक आपका क्या हो गया, क्रेडिटर हो गया. तो बैंक अकाउंट जहाँ पे बैंक लोन को हम क्या करेंगे, बैंक लोन आपका जो अमाउंट होगा वो क्रेडिट सेक्शन में आपको पुटअप करना होगा. तो दिस इज़ बेसिकली एन एग्जाम्पल ऑफ रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट रिलेटेड टू लाइबिलिटीज़. Then we talk about the capital section. Capital section is the third main part of modern approach of classification of account. If there is a decrease in capital in my business, then I have to do the entry in debit section. If there is an increase in my capital in my business, then I have to do this entry in credit section. So the formula is basically very simple कि अगर आपकी कैपिटल आपकी डिक्रीज हो रही है एज पर लाइबिलिटीज, अगर आपकी कैपिटल डिक्रीज होती है तो हमें उसको किस डेबिट में एंट्री करनी होगी. कैपिटल में इंक्रीमेंट होता है तो हमें उसे क्रेडिट साइड में एंट्री प्रोवाइड करनी होगी. फॉर एग्जाम्पल, आई स्टार्ट ए बिजनेस वर्थ रुपीज़ 2 लाख. मैंने बिजनेस स्टार्ट किया किससे, 2 लाख के साथ में. तो यहाँ पे 2 लाख के साथ में मैंने बिजनेस स्टार्ट किया है, तो मेरी कैपिटल में क्या हुआ है, इंक्रीमेंट हुआ है. कितने का, 2 लाख का. तो कैपिटल इंक्रीज मीन्स कि मुझे क्रेडिट सेक्शन में इसकी एंट्री करनी होगी कैपिटल अकाउंट की. लेकिन मैंने जो बिज़नेस स्टार्ट किया तो उसकी मेरी क्या होगी, कैश अकाउंट से रिलेटेड एंट्री होगी. तो कैश टू कैपिटल, तो ये कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, ये आपकी एंट्री होगी किससे रिलेटेड, ये रिलेटेड हुई आपकी कैपिटल के. जब हम बात कर रहे हो तो रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट क्या होता है कैपिटल अकाउंट से रिलेटेड, तो वेरी सिंपल कि अगर आपकी कैपिटल इंक्रीज हो रही है तो क्रेडिट कीजिए, कैपिटल डिक्रीज हो रही है तो उसे डेबिट कीजिए. नाउ द नेक्स्ट सेक्शन इज एक्सपेंसेस. एक्सपेंसेस मीन्स कि आपके खर्चे. तो अगर आपका खर्चा बढ़ता है तो उसे डेबिट करेंगे, और अगर आपके खर्चे घटते हैं बिजनेस में तो उसे क्रेडिट कीजिए. सो डेबिट व्हेन एक्सपेंसेस इंक्रीज एंड क्रेडिट व्हेन एक्सपेंसेस डिक्रीज. फॉर एग्जाम्पल, एक्सपेंसेस के इंक्रीमेंट से रिलेटेड एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पे कोट करती हूँ. फॉर एग्जाम्पल, सैलरी पेड. तो सैलरी मैंने पे करी, दैट मीन्स कि मेरा एक्सपेंसेस बढ़ गया क्योंकि मैंने वर्कर्स को सैलरी पे करी है. तो एंट्री बहुत ही सिंपल होगी. सैलरी पे करी मैंने, कैश में पे करी, तो एंट्री बिल्कुल सिंपल होगी. तो कैश मेरा गया, दैट मीन्स मुझे उसे 2 में दिखाना है, और सैलरी मेरी क्या होगी, डेबिट में होगी. तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट. तो ये बेसिकली आपकी एंट्री बन गई किससे रिलेटेड, जब आपके एक्सपेंसेस इंक्रीज होते हैं.
अब जब मैं क्रेडिट कब करूँगी, जब मेरे डिक्रीज होंगे एक्सपेंसेस। रेवेन्यूज़ की सेक्शन की बात करूँगी, एक्सपेंसेस के बाद में हम आते हैं रेवेन्यूज़ पे। तो रेवेन्यूज़, व्हेन देयर इज एन decrease in revenue, then we have to debit the transaction, and when there is a increase in revenues, then we have to do the entry in credit section of the journal entry. So अगर आपकी रेवेन्यूज़ की मैं बात कर रहे हैं तो वहाँ पे अगर आपकी डिक्रीज होती है रेवेन्यूज़ में तो वहाँ आपको क्या करना है, डेबिट करना है। और अगर आपकी इंक्रीज़ होती है रेवेन्यूज़ या इनकम आपकी इंक्रीज़ हो रही है तो उसे क्रेडिट करना है। फॉर एग्जाम्पल, ₹10,000 रिसीव्ड बाय सेल ऑफ अ ओल्ड बाइक। तो यहाँ पे क्या मिला, मुझे 10,000 कैश मिला। कब मैंने जब बाइक को सोल्ड कर दिया तो मेरी जो असेट्स थी, बाइक मेरी कम हो गई। तो कम हो गई बाइक को मैं क्रेडिट सेक्शन में पुटअप करूँगी और रेवेन्यू जो मेरी इंक्रीज़ हुई है उसे मैं डेबिट सेक्शन में पुटअप करूँगी यहाँ पे। तो मुझे क्या इनकम क्या इंक्रीज़ हुई है मेरी 10,000 की, और मैंने सेल की है क्या, बाइक। तो यहाँ पे आपका जो पर्टिकुलर अकाउंट बनेगा सेल्स अकाउंट टू कैश अकाउंट। तो यहाँ पे जो पर्टिकुलर अकाउंट आप बना रहे हो सेल्स टू कैश का, तो यहाँ पे 10,000 आपकी क्या है, रेवेन्यू है। नाउ द लास्ट वन सेक्शन अकॉर्डिंग टू मॉडर्न अप्रोच ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट इज बेसिकली रिलेटेड टू ड्रॉइंग सेक्शन। सो ड्रॉइंग्स मीन्स कि जो हम विड्रॉ करते हैं बैंक से, हमारे अकाउंट में जितना अमाउंट होता है उसमें हम विड्रॉ करते हैं तो वो आपकी क्या होती हैं, ड्रॉइंग्स होती हैं। तो ड्राइंग्स कैन बी फॉर पर्सनल यूज और फॉर बिजनेस यूज। तो ड्राइंग्स की अगर हम बात करें, सो व्हाट इज़ द रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट अंडर ड्राइंग सेक्शन। सो डेबिट व्हेन देयर इज एन इंक्रीज इन ड्राइंग्स, अगर आपकी ड्राइंग्स इंक्रीज होती हैं एज पर असेट सेक्शन वी हैव टू फॉलो द सेम रूल। इफ देयर इज एन इंक्रीज इन ड्राइंग सेक्शन in a business transaction, then we have to do the entry in debit side. And if there is a decrease in drawing section in a business, then we have to do this transaction in credit side. For example, I withdraw ₹40,000 from my bank account. मैंने विड्रॉ किया कितना, 40,000 फ्रॉम माई बैंक अकाउंट। दैट मीन्स मेरी ड्राइंग्स यहाँ हो गई, यहाँ पे बढ़ गई हैं। तो मेरी ड्राइंग्स यहाँ पे बढ़ी हैं, तो ड्राइंग्स बढ़ी है मीन्स मैं उसे डेबिट करूँगी। तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कितना, मेरे पास में यहाँ पे जो 40,000 का फ्रॉम बैंक अकाउंट से मैंने करी है, तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू आपकी बैंक अकाउंट यहाँ पे आएगा, तो उससे रिलेटेड आपकी एंट्री यहाँ हो जाएगी। तो दीज आर द 6 मेन रूल्स अंडर द हेड ऑफ मॉडर्न अप्रोच ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स। सो आई रियली विश दैट यू have a clear idea about following the rules of debit and credit, and what is the rule of debit and credit when you have to follow this in doing a journal entry. So first of all you have to look about the journal entry related to traditional approach of classification of account, and then second one you have to follow the modern approach of classification of account. So in next video I will provide you a basic idea how to recognize whether a transaction is a credit transaction or a cash transaction. So please watch my next video also, and please, if you till not subscribe my channel, then subscribe the channel soon. Thank you so much for viewing my video.